Welcome students. Today we are going to discuss some basic MCQs regarding silicon controlled rectifier SCR. Students, आज हम silicon controlled rectifier के कुछ basic MCQs को discuss करेंगे. So on the screen you can see the question and their options. So first question is, which terminal does not belong to the SCR? Anode, gate, base, cathode. SCR में कौन सा टर्मिनल नहीं होता है? As we all know, base is not there in SCR. SCR जो है उसमें बेस टर्मिनल नहीं होता है, जबकि एनोड, गेट और कैथोड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ थायरिस्टर SCR इज अ PNP डिवाइस, NPN डिवाइस, PNPN डिवाइस और PN डिवाइस. SCR जो है उसमें कितने लेयर होते हैं? बेसिकली PNP डिवाइस है, NPN डिवाइस है, PNPN डिवाइस है या PN डिवाइस है. So as we all know, it is a 4-layer PNPN device. So answer is C, PNPN device. Next is, an SCR is a 4-layer 4-junction device, 4-layer 3-junction device, 4-layer 2-junction device, 3-layer single-junction device. So we know that it is a 4-layer 3-junction device. Choose the false statement. इनमें से गलत वाक्य आपको चूज करना है. ऑप्शंस हैं, SCR इज अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस, यानी कि SCR में से दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है. SCR इज अ कंट्रोल्ड डिवाइस. इन SCR द गेट इज द कंट्रोलिंग टर्मिनल. SCR आर यूज्ड फॉर हाई पावर एप्लीकेशंस. सो एज वी नो, द रेस्ट 3 एक्सेप्ट A ऑल आर करेक्ट. SCR जो है वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस नहीं है, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस. So false statement is A. Next question, in SCR structure, the gate terminal is located. Options are near the anode terminal, near the cathode terminal, in between the anode and cathode terminal, or none of the mentioned. So as we all know, the structure of SCR, जो हमको पता है कि गेट टर्मिनल को कहां लोकेट किया जाता है, तो कैथोड टर्मिनल जो है उसके नजदीक हम लोकेट करते हैं. सो आंसर इज बी, नियर द कैथोड टर्मिनल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टैटिक VI कर्व फॉर द SCR इज प्लॉटेड फॉर. जो VI कर्व है SCR का, उसका जो ग्राफ बनता है उसमें बेसिकली y और x एक्सिस पे क्या क्या पैरामीटर लेते हैं और किस पैरामीटर को हम कांस्टेंट रखते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें IA एनोड करंट वर्सेस IA गेट करंट विथ VA, यानी कि एनोड कैथोड वोल्टेज as a parameter. Parameter means constant. So next option है IA versus VA with IG as a parameter. C option है VA versus IG with IA as a parameter and IG versus VG with IA as a parameter. तो यहाँ पे हमें पता है कि जो VI कर्व है उसमें एनोड करंट और एनोड वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनता है और गेट करंट को हम कांस्टेंट लेते हैं. That's why आंसर होगा आपका B. Next question is, if the cathode of an SCR is made positive with respect to anode, no gate current is applied, then what will happen? यहां पे हमें बताया है कि हम SCR के कैथोड को पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनोड टर्मिनल, और गेट करंट अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा. सो ऑप्शंस हैं, ऑल द जंक्शंस आर रिवर्स्ड बायस्ड, ऑल द जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड, ओनली द मिडल जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, only the middle junction is reverse biased. So we all know, when we made cathode positive with respect to anode, and if we know not applying the gate current, then middle junction is forward biased. So answer is C, only the middle junction is forward biased. For an SCR in the reverse blocking mode, practically क्या होगा? जब हम SCR को reverse blocking mode में ऑपरेट करते हैं तब practically क्या होता है? ऑप्शंस है, लीकेज करंट does not flow, leakage current flows from anode to cathode. C, leakage current flows from cathode to anode. And D, leakage current flows from gate to anode. So as we all know, in reverse blocking mode, leakage current जो है वो cathode से anode की ओर flow होता है. So answer is leakage current flows from cathode to anode. So next question is, with the anode positive with respect to cathode and the gate signal or circuit open, the SCR is said to be in.
यहाँ पे देखिए हमने अभी एनोड को पॉजिटिव कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड और गेट सर्किट ओपन है, तो एससीआर कौन से मोड में ऑपरेट होगा? ऑप्शंस है ए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, बी रिवर्स कंडक्शन मोड, सी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, डी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। सो वी ऑल नो दैट व्हेन एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो आपका और गेट सर्किट जब ओपन है तो आपका जो एससीआर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ऑपरेट होता है। इसके लिए आप मेरा जो एक एससीआर के रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल है उसको रिफर कर सकते हैं, जहां पे मैंने वीआई कैरेक्टरिस्टिक डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, फॉर एन एससीआर इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड प्रैक्टिकली व्हाट विल हैपन? एससीआर को जब हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ऑपरेट करेंगे तब क्या होगा? ऑप्शन से लीकेज करंट डज नॉट फ्लो, लीकेज करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, लीकेज करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, लीकेज करंट फ्लोज फ्रॉम गेट टू एनोड। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एससीआर को हम ऑपरेट करते हैं तब लीकेज करंट एनोड टू कैथोड फ्लो होगा। सो आंसर इज बी, लीकेज करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज इज। यहां पे डेफिनेशन के रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन, एनोड कैथोड वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट्स विथ गेट सिग्नल अप्लाइड, ठीक है। और नेक्स्ट है एनोड कैथोड वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट्स विथ नो गेट सिग्नल अप्लाइड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट में हमने गेट करंट अप्लाई किया है, सेकंड में नहीं किया है। गेट वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट्स विथ नो एनोड कैथोड वोल्टेज, एंड डी ऑप्शन, गेट वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट्स विथ एनोड कैथोड वोल्टेज अप्लाइड। यानी कि यहाँ पे जो चार ऑप्शंस है उसमें से आपका जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा एनोड कैथोड वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट्स विथ नो गेट सिग्नल अप्लाइड। यानी कि एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज जब कंडक्शन स्टार्ट होगा तब का, और जब हमने गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया है उस वोल्टेज को हम बोलेंगे फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, for a forwarding conducting SCR device, as the forward anode to cathode voltage is increased, what will happen? Forward conducting SCR में जब हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज इंक्रीज करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके, द डिवाइस टर्न ऑन एट हायर वैल्यूज ऑफ गेट करंट, बी ऑप्शन है द डिवाइस टर्न्स ऑन एट लोअर वैल्यूज ऑफ गेट करंट, सी ऑप्शन है द फॉरवर्ड इंपीडेंस ऑफ द डिवाइस गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड डी ऑप्शन है फॉरवर्ड इंपीडेंस ऑफ द डिवाइस गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो हमें पता है कि जब हम फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तब क्या होगा। तो ये जो चार ऑप्शन है उसमें इंपीडेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगी, तो दो ऑप्शन तो हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। और जो ये दो ऑप्शन हैं उसमें से हमें पता है कि गेट करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। जब हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तब हम कम गेट करंट पे डिवाइस को टर्न ऑन कर सकते हैं। सो आंसर इज बी, द डिवाइस टर्न्स ऑन एट लोअर वैल्यू ऑफ गेट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थायरिस्टर कैन बी बॉट फ्रॉम द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बाय। तो यहाँ पे हमें एससीआर को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लेके जाना है, और वो कैसे लेके जा सकते हैं उसके कुछ ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है द डीवी बाई डीटी ट्रिगरिंग मेथड, सेकंड अप्लाइंग अ नेगेटिव गेट सिग्नल, सी अप्लाइंग अ पॉजिटिव गेट सिग्नल, एंड डी अप्लाइंग अ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस एनोड कैथोड टर्मिनल्स। सो वी ऑल नो दैट कि जब हमें फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जाना है तो हमें एक रिवर्स वोल्टेज देना पड़ेगा एनोड कैथोड के टर्मिनल्स के बीच में। तो सेम आप एससीआर का जो ऑपरेशन है वो अगर अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको समझ सकते हैं तो आप यहाँ पे इजीली ऑप्शंस सिलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, यूजुअली द फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू टर्न ऑन द एससीआर बिकॉज। तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड है वो हम एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ऑप्शन है, इट इंक्रीजेज लॉसेस, सेकेंड इट कॉजेज नॉइज प्रोडक्शन, थर्ड इट में डैमेज द जंक्शन एंड डिस्ट्रॉय द डिवाइस, एंड डी रिलेटिवली इट्स एन इनएफिशिएंट मेथड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन जो इश्यू आएगा वो होगा सैचुरेशन का, जिसकी वजह से आपका डिवाइस जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहां पे होगा इट में डैमेज द जंक्शन एंड डिस्ट्रॉय द डिवाइस। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल मेथड टू टर्न ऑन द एससीआर डिवाइस इज। तो एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए सबसे सुटेबल मेथड कौन सी है? तो यहाँ पे बहुत ही ये सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप आंसर कर पाएंगे कि जो ऑप्शंस हैं उसमें है गेट ट्रिगरिंग मेथड, डीवी बाई डीटी ट्रिगरिंग मेथड, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड एंड लास्ट टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड। सो वेरी सिंपल मेथड इज गेट ट्रिगरिंग मेथड। आंसर इज ए। द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज इज मैक्सिमम व्हेन। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा। सो एज वी ऑल नो कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है वो गेट करंट के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इनवर्स करंट जितना आपका गेट करंट जितना कम होगा उतना ही ब्रेक ओवर वोल्टेज आपका ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है गेट करंट इंफिनिटी, गेट करंट जीरो, गेट करंट माइनस इंफिनिटी एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गेट करंट। सो आंसर इज बी, गेट करंट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द एससीआर टू रिमेन इन ऑन स्टेट यानी कि कंडक्टिंग स्टेट, हमको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन है गेट सिग्नल इज कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड, नो कंटिन्यूस गेट सिग्नल इज रिक्वायर्ड, नो फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, नो नेगेटिव गेट सिग्नल इज कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एससीआर को कंटिन्यूसली ऑन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है गेट सिग्नल को अगर कंटिन्यूसली आप देते रहोगे तो क्या ऑन रहेगा। सेकंड, नो कंटिन्यूस गेट सिग्नल इज रिक्वायर्ड। थर्ड, नो फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड एंड डी, नेगेटिव गेट सिग्नल जो है वो हमें कंटिन्यूसली चाहिए होगा। तो एज वी ऑल नो कि हम गेट सिग्नल को जस्ट स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं, बाकी अगर आप गेट सिग्नल को कंटिन्यूस स्टेट में नहीं रखोगे तो भी आपका एससीआर ऑन रहता है। सो आंसर इज बी, नो कंटिन्यूस गेट सिग्नल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एनोड करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंडक्शन ऑफ एन एससीआर इवन दो द गेट सिग्नल इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एज द। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन टाइप दिया हुआ है, पर वो डेफिनेशन किस चीज की है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। द वैल्यू ऑफ एनोड करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंडक्शन ऑफ एससीआर इवन दो द गेट सिग्नल इज रिमूव्ड, यानी कि गेट सिग्नल रिमूव करने के बाद जो एससीआर का कंडक्शन मेंटेन करने के लिए एक एनोड करंट की रिक्वायरमेंट होती है। एनोड करंट की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलेंगे? सो एज फ्रॉम द डेफिनेशन there are four options: holding current, latching current, switching current and peak anode current. So we all know the definition of latching current, which is just as the question, the minimum the value of anode current required to maintain conduction of SCR even though gate signal is removed. gate signal को remove करने के बाद जो anode current की एक आपको वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, मेंटेन करके रखनी पड़ती है, जिसको हम latching current बोलेंगे। नेक्स्ट, in the reverse blocking mode the middle junction J2 has the characteristics of that of a। तो इन क्वेश्चन है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जंक्शन J2 की कैरेक्टरिस्टिक किसके जैसी होती है? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, बी कैपेसिटर, सी इंडक्टर एंड डी नन ऑफ द मेंशन्ड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आपको पता है कि चार्जेस फ्लो नहीं हो पाते हैं बट चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, यानी कि इट इज सेम एज कैपेसिटर। सो आंसर इज बी, कैपेसिटर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एन एससीआर द टोटल टर्न ऑन टाइम कंसिस्ट ऑफ डिले टाइम, राइज टाइम एंड स्प्रेड टाइम। ये हमें पता है कि जो एससीआर का टर्न ऑन टाइम होता है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम। तो ड्यूरिंग द डिले टाइम में क्या होता है? तो ऑप्शंस है एनोड करंट फ्लोज ओनली नियर द गेट, एनोड करंट राइजेज फ्रॉम जीरो टू वेरी हाई, लॉसेस आर मैक्सिमम, एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज जीरो। तो डिले टाइम में क्या होता है? तो ऑप्शंस फर्स्ट हमको कहता है कि एनोड करंट फ्लोज नियर द गेट, एनोड करंट गेट के पास फ्लो होता है। सेकेंड है एनोड करंट राइजेस फ्रॉम जीरो टू वेरी हाई वैल्यू। थर्ड है लॉसेज आर मैक्सिमम एंड एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज जीरो। सो एज वी ऑल नो जो डिले टाइम है वहां पे हमें एनोड टू कैथोड वोल्टेज तो चाहिए ही होगा और लॉसेज का तो यहाँ पे कोई रिलीवेंस नहीं है, और जीरो टू हाई वैल्यू एनोड करंट जाने का भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। सो आंसर होगा आपका ए, एनोड करंट फ्लोज ओनली नियर द गेट। दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक एमसीक्यूज को डिस्कस किए हैं। प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट VI characteristic and basics of SCR theory from my previous video tutorials clearly, then go for this MCQs. Thank you.